Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope all of you will be doing very well and your studies will be going good. Yesterday we started our endo lecture and it was your last unit of pharmacology, and now we start with our first lecture. Now we move on to the second lecture of endocrinology. So we'll begin with the name of Allah, the most gracious, the most merciful. We pray to Lord increase our knowledge. Well, we have a case scenario. A 33-year-old woman presents with complaints of fatigue, sluggishness, weight gain, cold intolerance, dry skin, and muscle weakness for last 2 months. She's so tired that she has to take naps during the day to complete her task. So, what do you think this patient? What is your provisional diagnosis? What this patient suffering from? Any one of you? Yes, if any one of you reached to the right, then yes, this is a case of a hypothyroidism, and we will discuss what pharmacological treatments we have to treat such patients. So we'll begin with our lecture, that is thyroid and anti-thyroid drugs. So learning outcome of our today's lecture will be that you should be able to evaluate the role of drugs used in different hypothyroidism conditions, and find the pharmacologic treatment strategies for diverse hyperthyroidism. So we are going to discuss the both drugs used for hypothyroidism as well as the drugs used for the hyperthyroidism. So at the end of this lecture, students, all of you should be able to, first we will recall the biosynthesis, recall mode of action of thyroid hormones, we'll identify the disorders of secretion of thyroid hormones, like if it's leading to hypothyroidism and hyperthyroidism, and then we'll classify the drugs we are going to use for hypo and hyperthyroidism. Similarly, we'll discuss the individual drugs regarding this chemistry, mode of action, therapeutic uses, and adverse effects. And then we'll discuss the management of hypothyroidism, different clinical conditions of hypothyroidism like mesothelioma, coma, subclinical hypothyroidism, drug-induced hypothyroidism, and as well as with hyperthyroidism, Graves' disease, thyroid storm, neonatal Graves' disease, subclinical hypothyroidism. So let's have a look at this picture. What do you think? What this patient is suffering from and what this patient suffers from? Let's have a look. Yes, this patient suffering from hypothyroidism, as you can see from the puffiness of the face, right? And the suffering situation of hyperthermia, as you can see, there's exophthalmos and right. So we will let's have another look of this patient's what this patient is suffering from. Can you diagnose? Yes, this is basically goiter, and this child is suffering from the cretinism, right? So thyroid deficiency in the child who produces the cretinism. Now, so what happens? Yes, what causes disease? What induces the above disease? Yes, this is an imbalance of thyroxine hormone in our body. Well, let's recall the location of thyroid gland. Yes, the thyroid glands consist of two lobes of endocrine tissues. They are joined in the middle by isthmus. It's located at its overtrachea, and if we look at the histology of the thyroid gland, basically thyroid gland contains numerous follicles, as you can see, and they're composed of the epithelial cells and bolide filled in it. And also between these follicular cells, there are some parafollicular cells which produce basically the C cells secrete calcitonin, right? So if we see again, these follicles are lined with cuboidal epithelium. They're filled with colloid, and this colloid major constituent is thyroglobulin, which is a glycoprotein, and that contains basically here where the thyroid hormones are contained. And then coming to parafollicular cells, which are between the follicular cells, or they also known C cells, they are present between thyroid follicles. What they do, I told you, they secrete the calcitonin, which is basically concerned with the calcium metabolism. Now, regarding the functions of follicle, the function of follicles is to secrete two thyroid metabolic hormones. The one is the thyroxine or tetraiodothyronine, and second one is triiodothyronine T3, which is 10%, is around 90% present. What they do, these thyroid hormones are going to they are going to have a role in growth and development, body temperature maintenance, energy levels by maintaining the level of metabolism in tissues, right? So these thyroid hormones required for these normal body processes. So there are two biologically active thyroid hormones, as we discussed. There's for the tetraiodothyronine with T4 unit called thyroxine, and we have triiodothyronine unit called T3. They are derived from the modification of an amino acid tyrosine, basically a dry word. Now this is tyrosine, and then T4, and then this T3. Now, what are the differences between T4 and T3? Well,
Thyroid secrete about 80 micrograms of T4, but only 5 micrograms of T3 per day. So one is the difference comes in this secretion. Second, T3 has much greater biological activity, about 10 times greater than T4. It is more potent. T3 is more potent. And second, thirdly, addition इसके अलावा 25 micrograms per day T3 जो है produced होता है by peripheral monodeiodination of T4. Basically, what happens is T3 is also produced by deionization, यहाँ से iodine group का जो है वो remove हो जाता है, it's converted into T3. So now moving forward to our biosynthesis of this thyroid hormones, how basically these thyroid hormones are synthesized. What happens basically, you can have a picture of this. You can see, look at this thyroid gland picture. What happened? First of all, we have active transport of iodide होती है यहाँ पे into follicle के अंदर. ये suppose it's a follicle and by a symporter which is known as sodium iodide symporter. ठीक है, iodide अंदर आया. Then फिर क्या होगा? This can be, we have different drugs. Now this is a diagram basically showing you in the normal mechanism of these thyroid hormone synthesis, and secondly it is also showing you the group of drugs which are going to target the different steps, and these group of drugs we can use as an anti-thyroid drugs if you want to decrease the synthesis of thyroid hormones, right? So you will cover the both of the things like the synthesis of hormones as well as the anti-thyroid drugs which can be used in hyperthyroidism. Just fine, have a look of this diagram. This is a very important diagram. Okay, and so suppose if this is the step we can use, we have a group of drugs which are known as, like they have thiocyanate and pertecnate, perchlorate. They are going to stop the sodium iodide symporter to stop the intake of the iodine in case of hyperthyroidism, right? And now moving on to what happened next. यहाँ पे अंदर आया apical cell membrane. अच्छा, यहाँ पे basically एक और भी होता है, एक तो ये sodium iodide symporter है. There is another second iodide transport enzyme जिसे हम pendrin कहते हैं. This is not shown here, but it's written in your book. And what it does, it controls flow of iodide this across membrane. नाउ पेनड्रिन जो है बेसिकली जो आप हमारी इनर ईयर का कॉक्लिया है उसके अंदर स्पेशली प्रेजेंट होता है. अगर सपोज ये पेनड्रिन डेफिशिएंट हो, फॉर एग्जांपल कोई म्यूटेशन प्रेजेंट है किसी के अंदर है, तो उसके अंदर क्या होगा, देयर विल बी हेरिडिटरी सिंड्रोम जिसमें गोइटर भी होगा एंड देयर विल बी डेफनेस एंड इट इज नोन एज पेनड्रिन सिंड्रोम. ठीक है, so it is because of deficiency of this iodide transport enzyme in the cochlea, as well as it will be deficient in the thyroid. Independent syndrome if some patients with this mutation is there. Okay, this enzyme deficiency is there, this genes deficiency deficient mutation is there. So moving forward, iodide अंदर आ गया, ठीक है. Now what will happen? Now this second step will be the oxidation of iodide by thyroid peroxidase. As you can see, this iodide is oxidized into iodine by peroxidase, right? थर्ड स्टेप आपका आता है ऑर्गेनिफिकेशन. नाउ व्हाट हैपेंस, ये आयोडीन जो है ये रैपिडली आयोडिनेट करता है जो टायरोसिन के जो रेजिड्यूज पड़े हुए थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में, उनको आयोडीन उनकी आयोडिनेशन करेगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनिफिकेशन. अगर सपोज टायरोसिन रेजिड्यूज के साथ एक आयोडीन का मॉलिक्यूल लगा, ठीक है, वी विल कॉल मोनोहाइड्रोटायरोसिन. इफ इट इज two molecules of iodine we call diiodine. If it is 3 we'll call triiodine. If it is 4 we'll call tetra, or we call T4. ठीक है, so iodine rapidly iodinates tyrosine reduces and thyroglobuline molecules to form monoiodotyrosine and diiodotyrosine. ठीक है, अच्छा. Now this step is known as iodination of tyrosine residues is known as organification. ठीक है, and this step can be blocked by a group of drugs which are known as thiamides. ठीक है, जो इस यहाँ पे थायराइडल पेरोक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे, ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट करेंगे, एंड सम देयर आर आल्सो ग्रुप्स ऑफ ड्रग व्हिच आर नोन एज आयोडाइड्स. the group of drugs वो भी इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, and we can use it as anti-thyroid drugs. So moving forward to our fourth step, ऑर्गेनिफिकेशन हो गई. ऑर्गेनिफिकेशन के बाद अब आता है कपलिंग का प्रोसेस. कपलिंग में क्या होता है कि डीआईटी का एक मॉलिक्यूल एमआईटी के मॉलिक्यूल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, T3. सिमिलरली डीआईटी के टू मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, T4. So two molecules of DIT combine to form L4 and one molecule of MIT combine with DIT to form T3, right? And this can be blocked by thiamide drugs as we have mentioned it before. ठीक है, so this was the coupling. कपलिंग को भी thiamides ब्लॉक कर सकते हैं. Now this is basically just an animation to show you how DIT or MIT बन रहे हैं and T4 release. So moving forward to our fifth step, यहाँ पे हो गई
कपलिंग के बाद अब आती है प्रोटियोलिटिक रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन दी ब्लड, ठीक है। अब MIT, DIT, T4, T3 रिलीज हुए इस थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल से एटापिकल कोलाइडल बॉर्डर, एंड देन दिस MIT और DIT ये क्या करेंगे, यहीं पर डी आयोडीनेट हो जाएंगे, एंजाइडीन रिमूव हो जाएगा और ये आयोडीन जो है दोबारा रीयूटिलाइज होगा। लेकिन जो T3 और T4 बने हैं दे विल बी रिलीज्ड हियर इनटू द ब्लड, एंड ये जो प्रोटियोलिसिस का प्रोसेस है, जो रिलीज ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड का प्रोसेस है, इट कैन बी ब्लॉक बाय इंट्रा थायराइडल आयोडाइड। अगर यहाँ पे जो थायराइड के अंदर जो आयोडाइड्स मौजूद हैं वो इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर द प्रोटियोलिटिक रिलीज, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, T3 T4 एक्सेसिवली प्रेजेंट है ऑलरेडी ब्लड में, वी डोंट नीड इट, देन दीज आयोडाइड्स कैन ब्लॉक इट बाय नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स, वेल जो रेशियो है T4 to T3 का, जिसमें एक और चीज भी, अब ये पेरिफेरल टिश्यूज में आए, अब T4 T3 है, या T4 देन विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू T3, ठीक है। और इस स्टेप को कौन कौन सी ड्रग्स ब्लॉक्स कर सकती है, रेडियो कंट्रास्ट मीडिया, बीटा ब्लॉकर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एमाइड्रोज, ये हम will all discuss this group of drugs under our hyperthyroidism or the drug treatments for the hyperthyroidism condition. So moving forward to biosynthesis of thyroid hormones, जो रेशियो ऑफ T4 to T3 थायरोग्लोबिन मॉलिक्यूल में होता है 5:1 होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द रिलीज हार्मोन हमारे पास क्या है, थायरोक्सिन है, दैट इज T4। 80% ऑफ जो T3 है वो डिराइव्ड होता है बाय पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ T4, T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में, एंड रेस्ट जो होता है वो डायरेक्ट थायराइड की सिक्रीशन से हो जाता है, जो 10% यानी 20% होता है। अच्छा, अब ये रिलीज हुआ, अब इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड में, इट इज बाय बाइंडिंग टू थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है। सिर्फ 0.04% ऑफ टोटल T4 और 0.4% ऑफ T3 जो है वो फ्री फॉर्म में होता है FT4 एंड FT3, बाकी सारा जो है वो बाइंड होता है विद द थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। सो मूविंग फॉरवर्ड, now we come to transport हो गई, now we come to the metabolism of thyroid hormone, इनका metabolism कैसे होता है, ठीक है। as we हमने पहले भी बात ये बार बार की कि T4 किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, T3 में कन्वर्ट होता है। how it converts, it is metabolized into T3 by the action of enzyme which is known as 5' deiodinase enzymes, और इसकी भी further जो है isoforms हैं D1 D2 D3। जो D1 enzyme है 5' वो क्या करता है, 24% T3 प्रोड्यूस करता है, D2 एंजाइम जो 64% T3 प्रोड्यूस करता है, जबकि D3 जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ट्राइडोथाइन, जिसे हम रिवर्स T3 है, व्हिच इज दी बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म। सो D3 जो रिवर्स T3 है, जो इनएक्टिव T3 है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द D3 आइसोफॉर्म डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, व्हाइल द एक्टिव फॉर्म जो T3 है वो D1 और D2 से प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब पेरिफेरल इसमें जो लो T3 और जो रिवर्स T3 विच इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द T3 नॉर्मल इंडिविजुअल्स में लो होता है। Why? Due to high metabolic clearances of these two compounds, body से metabolically clear हो जाते हैं, ठीक है, excrete out जाते हैं। Now coming to, हमने इन drugs का नाम मैंने आपको पीछे डायग्राम में भी दिखाया था, and I was saying they are the anti-thyroid drugs and will use in the hyperthyroidism. Now what they're saying, amidron है, ठीक है, one of the drug iodinated contrast media है, beta blockers are already familiar, corticosteroids you will study in detail in endo now। ये, और अगर कोई सिवियर इलनेस है या कोई स्टार्वेशन है, ये सारी कंडीशंस और ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं 5' डीहाइड्रोजिनेज को, जो कि क्या कर रहा था, T4 को T3 में कन्वर्ट कर रहा था, which is necessary for the conversion of T3, जिससे क्या होगा, there will be low T3 and high reverse T3 levels in serum। तो एक्टिव जो T3 हमें चाहिए, क्योंकि वो इनहिबिट कर रहा है इस एंजाइम को 5' डीहाइड्रोजिनेज को, तो T3 जो एक्टिवली चाहिए वो हमारे पास कम होगा, और अब क्या होगा, हमारे पास जो इनएक्टिव फॉर्म में रिवर्स T3 लेवल्स हैं वो बेसिकली बॉडी में हाई होंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ चार्ट शोइंग यू ऑफ थायराइड के जो फंक्शन होते हैं, बेसिकली उनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म में। फॉर एग्जांपल नॉर्मल वैल्यूज जो है T4 की 4 to 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगी, इट विल बी लेस देन 4, और हाइपरथायरॉयडिज्म इट विल बी मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर। T3 के लेवल्स क्या होते हैं, 59 to 156 होते हैं, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में कम होंगे, हाइपर में ज्यादा होंगे। फ्री T4 जो होता है लो होता है, इसमें हाई होता है। फ्री T3 इसमें हाइपो में लो होगा, हाइपर में हाई होगा। थायरोट्रोपिक हार्मोन जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो ऑब्वियसली हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि
T3 T4 के लेवल्स जो है वो ब्लड में कम है, तो वहां से क्या जाएगा, फीडबैक जाएगा टुवर्ड्स द हाइपोथैलेमस, वो ज्यादा से ज्यादा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, वहां से वो पिट्यूटरी पे जाएगा, पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, जो कि जाके थायराइड को मैसेज देगा कि आप ज्यादा से ज्यादा T3 T4 लेवल रिलीज करें ताकि ब्लड में इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक जो हमें बताता है हाइपोथायराइडिज्म कि TSH के लेवल्स अगर बड़े हुए आ रहे हैं और T3 T4 के लेवल्स कम है, this shows that patient is along with all other clinical symptoms जो हैं the patient suffering from the hypothyroidism। whereas जबकि hyperthyroidism में क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 के लेवल्स बड़े में होंगे और नेगेटिव फीडबैक के जरिए ऑब्वियसली TSH के लेवल्स क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, अच्छा नाउ कमिंग टू, अगर हम आयोडाइड अपटेक दें, रेडियो एक्टिव आयोडीन हम देते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल जो ग्लैंड होता है उसमें 5 to 35% होता है, लेकिन जो हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट होता है उसमें आयोडाइड अपटेक लो होता है और जो हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट उसमें आयोडाइड अपटेक हाई होता है। सिमिलरली जो एंटीथायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं वो नॉर्मल वैल्यूज लेस देन 200 होती हैं। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में it could be often present और hyperthyroidism में ये usually present होती हैं। Similarly thyroporous oxidase antibodies हैं, ये less than 100 होनी चाहिए WHO यूनिट्स के मुताबिक, ये भी hypothyroidism में often present होती हैं और hyperthyroidism में भी present होती हैं। जो आइसोटोप स्कैन अगर हम कराते हैं विद आइडियम या टेक्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें नॉर्मल पैटर्न आता है, इसमें कोई हाइपोथायराइडिज्म के लिए ये टेस्ट इंडिकेट नहीं होता, लेकिन अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में, तो ऐसे स्कैन पे जो है ना डिफ्यूजली लार्ज ग्लैंड हमें मिलेगा। सिमिलरली वी गो टू FNA बायोप्सी, अगर आप लोग क्लिनिकल साइट पे गए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि फाइन नीडल एस्पिरेशन होती है, फाइन सी नीडल होती है, वो हम डाल के किसी भी ऑर्गन का अगर हम बायोप्सी करना चाह रहे हैं उसका स्मॉल सा पीस लेते हैं और फिर उसे हम उसकी बायोप्सी करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इसका जो पैटर्न क्या आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकल, इसमें नॉर्मल पैटर्न होगा FNA पे, ये इसके लिए ये बेसिकली इसमें हम ये टेस्ट इंडिकेटेड नहीं है। वी आर ये हम टेस्ट बेसिकली यूज करते हैं अगर हम वी आर सस्पेक्टिंग कोई थायराइड न्यूप्लाज्म्स तो नहीं है कि इसमें न्यूप्लास्टिक चेंजेस तो नहीं आएंगे होंगे। ठीक है, सिमिलरली वी गो फॉर सीरम थायरोग्लोबुलिन, वुमेन में 1.5 टू 38.5 है, मैन में 1.4 टू 29 है। वेल ये सीरम थायरोग्लोबुलिन अगेन हम इनके लिए टेस्ट इंडिकेट नहीं करते डायग्नोज करने के लिए। देन वी हैव TSH रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी है या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी होती है, जो कि नॉर्मली तो क्या होगी, नॉर्मली तो है नेगेटिव होगी, बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर सपोज एक हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है और वो ग्रेव्स डिजीज है, तो उसमें क्या होती है, ग्रेव्स डिजीज में स्पेशली क्या होती है, ये एंटीबॉडी होती है जो कि स्टिमुलेट कर रही होती है थायराइड ग्लैंड को टू रिलीज अ लॉट ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड ठीक है, जबकि हाइपोथायराइडिज्म में हम ये हाइपोथायराइडिज्म डायग्नोस करने के लिए हम ये यूज टेस्ट नहीं इंडिकेट करते। Now moving forward to regulations और functions of thyroid की किस तरीके से होते हैं, basically जो regulate होता है, सब first of all we have पहले भी हमने डिस्कस करी और already familiar with it कि feedback control हमारी बॉडी में होता है, especially with the hypothalamic and pituitary and other organs relationship। So again क्या होगा, स्ट्रेस और कोल्ड, अगर फॉर एग्जांपल स्ट्रेस इनहिबिट करता है हाइपोथैलेमस को, या बच्चों में अगर कोल्ड है तो वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा थायरोट्रोपिन रिलीज हम सिक्रीट करे और वो जाके एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, वहां से TSH रिलीज होगा, TSH जाएगा थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा, वहां से T3 T4 रिलीज होंगे एंड इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट एंड हीट प्रोडक्शन, एनहांसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड CNS डेवलपमेंट, ठीक है, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी। इस तरीके से फीडबैक कंट्रोल है हमारे पास जो थायराइड के फंक्शंस हैं, उसकी सिक्रीशंस की जो रेगुलेशंस हैं। यहाँ पे भी एक और डायग्राम की बुक से कि फॉर एग्जांपल कोल्डनेस, जैसे मैंने बच्चों को बताया, एक्यूट साइकोसिस भी स्टिमुलेट कर रहा होता है, ये सर्कैडियन रिदम, ये पल्सेटाइल रिदम्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है, स्लीप के, फॉर एग्जांपल रात को स्लीप के टाइम, और या सिवियर स्ट्रेस, अच्छा ये सारे पॉजिटिव हैं जो कि स्टिमुलेट करेंगे कोल्ड, एक्यूट साइकोसिस, सर्कैडियन रिदम और पल्सेटाइल रिदम्स। लेकिन अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो फिर वो इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को, इनहिबिटरी इफेक्ट। अच्छा फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये रिलीज क्या कर रहा है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि एंटी पिट्यूटरी पे जा रहा है, फिर एंटी पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड दिस थायराइड को क्या स्टिमुलेट कर रहा है, रिलीज को T3 T4। जब T3 T4 एक्सेस हो जाएंगे ब्लड में, फिर वो क्या करेंगे, नेगेटिव फीडबैक देंगे, डोंट रिलीज मोर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, दैट वाज ऑल। अच्छा नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेगेटिव फीडबैक एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन TSH, इस ये भी एक और डायग्राम है, इसको भी आपको यही बता रही है कि हाइपोथैलेमस से TRH रिलीज हो रहा है और TSH सिंथेसिस पिट्यूटरी हो रही है, फिर T3 and T4
जो है रिलीज हो रहे हैं, एंड देन दे विल हैव नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट इफ दे आर इनफ इन द ब्लड. अच्छा, नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्टेप. सबसे पहले हमारे पास रेगुलेशन जो सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन है, एक तो फीडबैक कंट्रोल है, हमारी बॉडी में जो फीडबैक कंट्रोल हो रहा है थ्रू द ब्लड हार्मोन लेवल. ठीक है. सेकंड जो हमारे पास है मैकेनिज्म जो थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन सिंथेसिस का, दैट इज द आउटर रेगुलेशन. थायराइड इटसेल्फ भी आउटर रेगुलेट कर रहा होता है थायराइड हार्मोन्स की सिक्रीशंस को. कुछ इंट्राथायरॉयडल थायराइडल मैकेनिज्म्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं टीएसएच के. वो टीएसएच पे डिपेंड नहीं करते हैं कि टीएसएच रिलीज हो थायराइड एंटी पिट्यूटरी से और वो उसको को कमांड करे कि यू सीक्रेट द हार्मोन C3 and T4. दे आर डिपेंडिंग. ये बेसिकली ये मैकेनिज्म जो है इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ आयोडीन इन ब्लड, कि ब्लड में आयोडीन का लेवल कितना है. अगर हाई लेवल ऑफ आयोडीन है ब्लड में तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी ब्लड में आयोडीन के लेवल हाई है तो ये क्या करेगा, इस ऑर्गेनिफिकेशन जहाँ पे ये आयोडीनेशन टेरोसिन रेजिस्टेंस इसको इनहिबिट करेगा, और इसको एक नाम हम देते हैं वॉल्व शेकऑफ ब्लॉक या वॉल्व शेकऑफ इफेक्ट. ठीक है. ये ब्लॉक कर रहा है आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज को ड्यू टू हाई लेवल ऑफ आयोडीन इन द ब्लड. अगर सपोज आयोडीन की डेफिशिएंसी है, लो लेवल ऑफ आयोडीन है, तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लैंड को इन आयोडीन डेफिशिएंसी, और ये करेगा ज्यादा से ज्यादा जो है आप आयोडीनेशन करो टायरोसिन रेजिड्यूज के, जिसके नतीजे में क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज भी होगा एंड कैन लीड टू गोइटर. जैसे आपने देखा होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, गोइटर हो जाता है. क्यों? क्योंकि आयोडीन ब्लड में कम है, तो वो जाके जो है वो सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को कि आप जो है आयोडीनेशन ज्यादा से ज्यादा करें टायरोसिन रेजिड्यूज को, ताकि T3 T4 बने और वो बॉडी में ब्लड में रिलीज हो. ठीक है. तो फर्स्ट वन was the mechanism feedback control. Second mechanism is the outer regulation of thyroid gland through the levels of iodine in the blood. ठीक है. सही है. अच्छा, उसके बाद कुछ सर्टेन डिजीज स्टेट्स होती हैं जैसे हाशिमोटोस थायराइडाइटिस है. इसमें क्या होता है, ये क्या करती हैं, थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. ठीक है. थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस होने नहीं देती हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है. ठीक है. और दूसरी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म में. व्हाट डू यू थिंक क्या हुआ होगा हाइपरथायरॉयडिज्म में, जब इतने ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी, यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो ये यहाँ पे ये वॉल्व शेकऑफ ब्लॉक जो हमने कहा था कि जो कि इनहिबिट कर रहा होता है, ये जो इफेक्ट क्या हो गया होगा, लॉस हो जाएगा, पहुंच गया होगा. ये यहाँ पे उसको ब्लॉक नहीं कर रहा होगा, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिफिकेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा आयोडीन टायरोसिन आयोडीनेशन होगी, टायरोसिन रेडियस के ज्यादा T3 T4 रीजन पे लीड टू हाइपरथायरॉयडिज्म. ठीक है. और उसमें पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर के साथ भी, लार्ज ग्लैंड के साथ. ठीक है. थर्ड हमारे पास आती है जो कंट्रोल है. फर्स्ट हमारे पास फीडबैक, सेकंड हमारे पास था जो आउटर रेगुलेशन थायराइड ग्लैंड, थर्ड है हमारे पास कुछ एबनॉर्मल थायराइड स्टिमुलेटर्स होते हैं बॉडी में. जैसे मैंने आपसे पहले भी हमने बात की, ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, एक एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी. ठीक है. ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जो सिक्रीट हुई लिम्फोसाइट्स ग्रेव्स डिजीज के पेशेंट में, ये स्टिमुलेट करेगी ग्लैंड को, टीएसएच रिसेप्टर्स को, और ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा हार्मोन्स रिलीज हुए. और ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन है, इसकी जो हाफ लाइफ है वो इनफैक्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू टीएसएच से, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. सो क्या होगा, इंक्रीज सिंथेसिस होगी, रिलीज ऑफ हार्मोन्स होगा, और ग्लैंड का साइज इनलार्ज होगा. ठीक है. और ये जो टीएसएच रिसेप्टर्स हैं, ये हमारे पास ऑर्बिटल फाइब्रोसाइट्स में भी होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन जब ज्यादा से ज्यादा ग्लैंड से भी रिलीज कराएगी, सेकेंडली जो फाइब्रोसाइट्स पे वहां पे पड़े हुए हैं रिसेप्टर्स, वहां पे बाइंड करके क्या कराएगी, ऑप्थैल्मोपैथी कराएगी, जिस वजह से एक्सोप्थैल्मोस हो जाता है पेशेंट. जिसमें आपने ग्रेव डिजीज का पेशेंट दिखाया जिसमें एक्सोप्थैल्मोस हुआ हुआ था. ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. Basically, this binds to plasma membrane bound G protein coupled receptors है thyroid follicular cells पे. वहाँ पे क्या करेगा, जैसे TSH आया, यहाँ बाइंड हुआ TSH receptors के साथ, वहाँ एक्टिवेट करता है adenyl cyclase को. adenyl cyclase क्या करेगा, ATP को cyclic AMP में कन्वर्ट करेगा, and ultimately it will lead to the progression of second messenger protein kinase A phosphorylation होगी, and then जो है effects produce, biological effects produce होंगे. Now this is the diagram basically from your CADSM. इसको मैंने थोड़ा समझाने के लिए आपको डाली कि आप लोग इससे परेशान ना हो डायग्राम को देखे. फॉर एग्जांपल, नॉर्मली जब कोई इसके साथ थायराइड हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं हुए हुए, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, डीएनए है, तो यहाँ पे कोर प्रेशर मौजूद होता है जो कि इनहिबिट कर रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन को. ठीक है. सही है. अब जैसे ही थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन से T4 T3 यहाँ पर आए और वो बाइंड हुई यहाँ पे
सेल्स के साथ, और T4 अंदर गई, T4 की फिर 5 प्राइम डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स के जरिए T3 में कन्वर्ट हुआ, ये T3 अंदर जाएगा थायोट्रोपिन लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के साथ। जैसे ही बाइंड होगा यहाँ को एक्टिवेटर आके यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो कोर प्रेशर जिसको इनहिबिट करा था वो रिलीज हो जाएगा। एंड देन इट उससे क्या होगा, फर्दर जो है फिर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन और जीन्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो अगेन दिस अनदर डायग्राम आपको जिसमें दिखाया गया कि क्या हो रहा है कि दिस इज बेसिकली ब्लड है, ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, साइटोसोल ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे अब जो T4 T3 है वो सेल में एंटर हुए हैं बाय डिफ्यूजन और बाय कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये T4 यहाँ पे आया, T4 पे फर्दर अंदर T3 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बाय 5 प्राइम मोनोडिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, या फिर अगर T3 डायरेक्टली भी खुद जो रिलीज हुआ है वो भी अंदर आया, देन T3 इज गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इज बाइंडिंग विद द थायराइड हार्मोन रिसेप्टर, और इसके साथ यहाँ रेटिनॉइड एक रिसेप्टर भी होता है। फिर वो क्या करेगा, ये थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट्स क्या करेंगे, जीन ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेंगे, मैसेंजर आरएनए रिलीज होगा, एंड देन दिस मैसेंजर आरएनए विल गो आउट ऑफ न्यूक्लियस, इट विल cause the synthesis of sodium potassium palm glycogenic enzymes, respiratory enzymes, myosin heavy chains, beta receptor, many other सारे जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं, सेल प्रोसेस, सेलुलर प्रोसेसेस हैं, उनकी क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा, उसको एनहांस करेगा। ठीक है, सो this again another diagram to make you try to catch up the concept of this all mechanism of action of thyroid hormone. Again T4 है ये, ठीक है, T4 T3 में कन्वर्ट हुआ, T3 न्यूक्लियस में है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है, दिस मैसेंजर आरएनए क्या करे, सोडियम पोटेशियम ATP, ये सारे इंट्रासेलुलर इफेक्ट्स पर यूज हो रहे हैं, ATP की यूज को इंक्रीज कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम्स को बढ़ा रहा है। ठीक है, सो ऑल द होल बॉडी इफेक्ट्स को ये क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। ठीक है, नाउ अगेन इनडायरेक्ट इफेक्ट्स क्या हैं कि हीट प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर रहा है, एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन इंक्रीज कर रहा है। जो डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं हार्मोन्स के कार्डियक मसल्स पे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, इन सबको इंक्रीज करा रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिस इंक्रीज, तो हार्ट रेट बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी अल्टीमेटली बढ़ रही है। Now the effects of thyroid hormones and basically now talking about the effects of thyroid, these thyroid hormones are responsible for optimal growth of the body, development, function, maintenance of all body tissues. ठीक है, हमारी सारी बॉडी के जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो बेसिकली थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, और दे आर क्रिटिकल फॉर नर्वस, स्केलेटल एंड प्रोडक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये पोटेंशिएट करते हैं एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स के पर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इफेक्ट करते हैं सिक्रीशन एंड डिग्रेडेशन जो कैटेकोलामीन्स हैं, जैसे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इन सब की सिक्रीशंस, इनकी डिग्रेडेशन, इन सब पे थायराइड हार्मोन्स के बेसिकली इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, now moving forward to hypothyroidism, we'll begin with the first of all we will discuss the whole hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, इसकी क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, हाइपोथायराइडिज्म की क्या क्लिनिकल डिफरेंट कंडीशंस हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की हम ट्रीटमेंट देखेंगे, हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया ताकि हम जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जो टेलिंग यू दिस इज जो हमारे पास ये थायराइड की कंडीशंस है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, दे आर वेरी प्रिवेलेंट इन आवर country as well as worldwide, बहुत कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, you should be aware of all these things. ठीक है, so moving forward to hypothyroidism, इसमें होगा क्या, डिक्रीज लेवल्स ऑफ T4 एंड T3 होंगे। अगर थायराइड की डिप्राइवेशन हो जाएगा T4 3 फीटल लाइफ में, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्जेनाइटल क्रेटिनिज्म हो गया। अगर अर्ली लाइफ में थायराइड डिप्राइवेशन हो जाए तो इरिवर्सिबल मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और डवार्फिज्म, कॉन्जेनाइटल क्रेटिनिज्म। अच्छा, एक बच्ची जिसको बिफोर था, जब से थायराइड ट्रीटमेंट दी, आफ्टर उसकी पिक्चर है। ठीक है, अच्छा, ये अगेन दिस कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म का केस है, फिर इसको ट्रीट किया तो फिर आप ये बेबी इस तरीके से आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, बच्चे की सही ग्रोथ है। अच्छा, तो सिवियर अगर बहुत ज्यादा सिवियर हाइपोथायराइडिज्म जो हो जाता है, मेक्सिडिमा कोमा हो जाता है, दिस इज एंड स्टेज सिवियर हाइपोथायराइडिज्म, इसको हम अलग से भी आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होता है, ये है कि बेसिकली एक आउटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है थायराइड ग्लैंड की, और पेरोक्सिडेज की वजह से थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं बॉडी में। तो लैब डायग्नोसिस क्या होगी, लो फ्री T4 और एलिवेटेड क्या होगा, TSH लेवल होगा। ट्रीटमेंट अगेन हमारे पास क्या है, थायराइड हार्मोन। सो वी विल मूव टू नाउ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। बेसिकली सारी हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या है, रिप्लेस विद दी हाइपोथायराइडिज्म, एक्सेप्ट वो हाइपोथायराइडिज्म जो कि ड्रग इंड्यूस्ड हो, उसमें हम क्या करेंगे, ड्रग को स्टॉप कर देंगे। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब एमाइड्रॉन एक ड्रग है जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म, तो हम विल विदड्रॉ दैट ड्रग, हम एमाइड्रॉन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सो थायराइड प्रिपरेशंस में हमारे पास जो सिंथेटिक प्रिपरेशंस हैं, वी हैव लेवोथायरॉक्सिन,
और एल-थायरोक्सिन विच इज नोन एज T4 जो ड्रग ऑफ चॉइस है जो हम यूज करते हैं। फिर देन वी हैव लायोथायरोनिन विच इज अ T3, ये रेयरली यूज करते हैं। क्यों हम ये रेयरली यूज करते हैं? ऑल्दो हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा पोटेंट भी है, बिकॉज इट हैज गॉट साइड इफेक्ट ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, इस वजह से हम इसको रेयरली यूज करते हैं। वी मोस्टली यूज दिस T4। इसका फायदा क्या है कि अगर हम T4 यूज करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स हमें, सेकेंडली ये T4 अल्टीमेटली बॉडी में जाके T3 में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसके इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, पोटेंसी जो भी पोटेंट इफेक्ट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं। अच्छा, लाइट्रिक्स एक प्रिपरेशन है जिसमें 4:1 रेशियो होता है, 4 T4 का रेशियो और 1 T3। ये यूज नहीं होती बिकॉज अगेन जो T3 जो है उसकी कार्डियोटॉक्सिसिटी की वजह से, सेकेंडली ये एक्सपेंसिव प्रिपरेशन है। अच्छा, अगर एनिमल ओरिजिन का हो थायराइड प्रिपरेशन तो थायराइड डेसिकेटेड है, ये भी यूज नहीं होती क्योंकि इसमें भी एंटीजेनेसिटी के इश्यूज हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी के और वेरिएबल हार्मोन कंसंट्रेशंस मेंटेन होती हैं T3 T4 की वजह से, ये भी हम यूज नहीं करते। अच्छा, जो शेल्फ हाफ लाइफ है सिंथेटिक हार्मोन्स की वो अराउंड 2 इयर्स है, ठीक है। नाउ बिगिनिंग विद एल-थायरोक्सिन T4, ये ड्रग ऑफ चॉइस जैसे हमने बात की। थायराइड रिप्लेसमेंट हम किन किन कंडीशन में, क्रेटिनिज्म हो या एडल्ट हाइपोथायराइडिज्म या मिक्स्ड एडिमा कोमा जो कि एंड स्टेज डिजीज है हाइपोथायराइडिज्म की, उसमें हम यूज कर सकते हैं। या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई थायराइड नोड्यूल है उसको हमने सप्रेस करना हो, ठीक है, तो हम एल-थायरोक्सिन दे सकते हैं। फिर नेगेटिव फीडबैक के जरिए जो क्या होगा, थायराइड नोड्यूल की सप्रेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बेनिफिट्स क्या है लेवोथायरोक्सिन यूज के, या इसके एडवांटेजेस क्या है ओवर द T3 क्या है? स्टेबल है T4, कंटेंट यूनिफॉर्म है, कॉस्ट इसकी लो है, इसमें कोई एलर्जेनिक फॉरेन प्रोटीन का प्रॉब्लम नहीं है, इट लैक्स एलर्जेनिक फॉरेन प्रोटीन। इसकी लैब मेजरमेंट सीरम लेवल्स की बहुत इजीली हो जाती है। इसकी बायोलॉजिक हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, 7 days तक है इसकी। सो वंस डेली टू वीकली एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी की मतलब बहुत ज्यादा अगर डेफिनेटली तो डेली लेंगे, अगर किसी की इतनी ज्यादा नहीं है तो वीकली एडमिनिस्ट्रेशन भी दी जा सकती है, क्योंकि हाफ लाइफ इसकी ज्यादा है और स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है विद इन 6 to 8 weeks। अच्छा, T4 का फायदा वो अगेन वी डिस्कस प्रीवियसली कि T3 में भी इंट्रासेलुलरली कन्वर्ट हो जाती है, सो द एडमिनिस्ट्रेशन T4 प्रोड्यूसेस बोथ हार्मोन्स, राइट। अच्छा, अब सिंथेटिक लायोथायरोनिन या T3 पे हम आते हैं। T3 ज्यादा पोटेंट है, इसकी अच्छी बात क्या है, ज्यादा पोटेंट है T4, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करते बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, और इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, जस्ट 24 आवर्स, जबकि T4 की 7 days है। कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई है, ग्रेटर डिफिकल्टी इन मॉनिटरिंग है, ठीक है। अच्छा, सो विल मूव फॉरवर्ड, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ exogenously given in synthetic thyroid हार्मोन्स के हम फार्माकोकाइनेटिक डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन में कैसे होती है कि हम ओरली देते हैं, बेस्ट एब्जॉर्ब होती है डिओजनम और आइलियम में, लेकिन अगर फूड के साथ लिया है, फॉर ब्रांड कॉफी या ड्रग्स के साथ लिए, कैल्शियम कार्बोनेट या पीपीआईस हैं, बिसफॉस्फोनेट्स है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करेंगे, इसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे। तो इस वजह से हम एडवाइस करते हैं हमेशा पेशेंट को कि 30 minutes बिफोर मील लें या ब्रेकफास्ट में बिफोर लें, या 1 hour आफ्टर मील्स लें, और या फिर बेड टाइम पे लें, ठीक है। बेड टाइम पे वो भी खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। सो ओरल बायोएबिलिटी T4 की 70% है, जबकि T3 की 95% है, ठीक है। T4 और T3 की एब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, हमने सिवियर मिक्सेडिमा विद ईडीएस जो होता है उसमें T4 T3 एब्जॉर्ब नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में फिर हम पेशेंट को क्या करते हैं, आईवी रूट के जरिए T4 T3 दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एब्जॉर्ब हो गई बॉडी में, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, ट्रांसपोर्ट ये ब्लड में होगी थ्रू द थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इसके साथ अटैच होकर होगी। मेजर पोर्शन जो है इसके साथ अटैच होकर होता है, जबकि 0.04% T3 जो है वो फ्री FT3 FT4 की फॉर्म में होता है। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट भी हो गई, अब फिर इसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। डीहाइड्रोजनेशन होगी टारगेट टिश्यूज में, इसमें T4 T3 में कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या मेटाबॉलिज्म है, लिवर में डीएमाइनेशन हो सकती है, डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लूकोनाइड और सल्फेट कॉन्जुगेशन होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो सकती है। एक्सक्रीशन कैसे होगी, पार्टली इन बाइल एंड पार्टली इन यूरिन। अच्छा, अब इसकी जो हम टॉक्सिसिटी पे आ सकते हैं रिलेटेड, जो T4 लेवल्स अगर हो, टॉक्सिसिटी T4 की क्या क्या हो सकती है, एडल्ट्स में नर्वसनेस कर सकती है, पैल्पिटेशन, ऑब्वियसली T4 हम दे रहे हैं, थायरोक्सिन दे रहे हैं, तो इसके बॉडी में हम जो इट इज बेसिकली हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट्स आर द एक्सटेंशंस ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो अगर ये इसकी एक्सटेंशंस हो जाए तो क्या होगा, नर्वसनेस, हार्ट रेट बढ़ा रही है, पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया, इंट्रॉन हीट प्रोड्यूस करी तो इंट्रॉलमेंस हो जाएगी हीट की, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ गया तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा। बच्चों में क्या करेगी, रेस्टलेसनेस करेगी, इंसोम्निया करेगी, एक्सिलरेटेड बोन मैच्योरेशन और ग्रोथ एक्सिलरेट करेगी। अच्छा, T3 की क्या है, अगेन ये अब आपको याद हो, सेम T4 वाले, और अगेन इसके साथ साथ ये मेनली क्या है, कार्डियोटॉक्सिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक समरी है थायराइड हार्मोन की काइनेटिक्स की, इसमें कंपेयर किया हुआ T4 T3 की, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन T4 का 10 लीटर है, T3 का
40 लीटर है। एक्स्ट्रा थायराइड पूल जो है इसका 800 माइक्रोग्राम, इसका 54 है। डेली प्रोडक्शन इसकी 75 माइक्रोग्राम, इसकी 25 है। फंक्शनल टर्नओवर पर डे इसका 10% है, इसका 60% है। मेटाबॉलिक क्लियरेंस जो है इसकी 1 लीटर है, इसकी 24 लीटर है। हाफ लाइफ 7 डेज, इसकी 1 डे है। ठीक है, ये लेवल्स लिखे हुए हैं। बायोलॉजिकल पोटेंसी इसकी 1 है, इसकी 4 है। ओरल एब्जॉर्प्शन 70%, इसकी 95% है। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ पेशेंट जिसमें दिखाया गया ये ग्रॉस हाइपोथायराइडिज्म है, एक एडल्टी फीमेल। इसमें एलोपेशिया देखें इसको हुआ हुआ है। नॉर्मल फेशियल कंटोर्स लॉस हुए हैं इसके। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट किया था डिप्रेशन के साथ, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। फर्स्ट जब आइडेंटिफाइड किया हुआ इसको लॉन्ग टर्म साइकेट्रिक केयर में, उसको थायरॉक्सिन की ट्रीटमेंट दी गई। देन आफ्टर सेम 8 मंथ्स के बाद ये पेशेंट आप देखें इसका ये एलोपेशियन पेशेंट्स का रिजॉल्व हो गया, फेशियल कंटोर्स आ गए, हेयर ग्रोथ हो गई है। ठीक है, साइकेट्रिक स्टेट भी इंप्रूव हो गई थी। ठीक है, नाउ वी कमिंग टू मिक्सेडिमा कोमा। पहले भी हमने बार बार इसको डिस्कस कर लिया है, अब हम अगेन भी डिस्कस इन डिटेल। ठीक है, इसका जिक्र हो चुका है पहले। बेसिकली दिस एंड स्टेज ऑफ अनट्रीटेड जो हाइपोथायराइडिज्म है, इसकी एंड स्टेज है वो मिक्सेडिमा कोमा है, मेडिकल इमरजेंसी। इसमें होता क्या है, बेसिकली प्रोग्रेसिव वीकनेस हो जाती है, स्ट्यूपर होता है, हाइपोथर्मिया, हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, वाटर इंटॉक्सिकेशन, शॉकर डेथ भी हो सकती है। ऐसे पेशेंट को हम आईसीयू में मैनेज करते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेशन भी रिक्वायर हो सकती है। अगेन इनमें ड्रग्स क्या देंगे, विल गिव द ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास क्या होगी, लीवोथायरॉक्सिन T4। आईवी देंगे क्योंकि हमने कहा था कि मिक्सडीमा में क्या होता है कि आईलीएस मिक्सडीमा आईलीएस बेसिस में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, इस वजह से हम आईवी देंगे। और एक इमरजेंसी कंडीशन में आल्सो गिवन है आईवी 300 to 400 माइक्रोग्राम स्टार्ट देंगे, फिर पर डे हम 50 to 100 माइक्रोग्राम देंगे। इसके अलावा हम हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉइड्स भी देंगे। अगर पेशेंट्स के अंदर एसोसिएटेड पिट्यूटरी इंसफिशिएंसी हुई है या कोई एड्रेनल इंसफिशिएंसी तो हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। अगर सपोज कोई इन्फेक्शन भी पेशेंट में तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। हार्ट फेलियर में जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करने के लिए हम थेरेपी देंगे। अच्छा, क्वेश्चन आपने क्या एक्सरसाइज करना है, क्या ओपियोइड्स को अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को और ज्यादा सिडेटेड या एक्सेसिव आई पेशेंट ऑलरेडी जो है वो वाटर इंटॉक्सिकेशन में हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो एक्सेसिव आई भी हम अवॉइड करेंगे। अच्छा, now we have another condition, myxedema with अगर coronary artery disease। So basically मिक्सिडिमा जो फ्रिक्वेंटली ओल्डर लोगों में होता है और ये अक्सर एसोसिएटेड होता है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज। ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो लो लेवल्स ऑफ सर्कुलेटिंग थायराइड हार्मोन ये एक्चुअली हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, इट्स अ गुड थिंग। तो जो रिस्क ऑफ एरिथमिया से एंजाइना एक्यूट एमआई होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो हार्मोन्स इस पेशेंट में ऑलरेडी कम होते हैं, थायराइड हार्मोन। और अगर ऐसे पेशेंट को मिक्सिडिमा करेक्ट करना हो तो बहुत हमने कॉशियसली करना होता है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा दे दिया तो एकदम से जो है पेशेंट जो है वो उसके अंदर रिदमियाज में एंजाइना में जा सकता है। ठीक है, और अगर पेशेंट के की ऐसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो तो उसमें इट्स इंडिकेटेड कि आप पहले उसकी सर्जरी कराएं कोरोनरी आर्टरी की। इट शुड बी डन फर्स्ट प्रायर टू करेक्शन ऑफ मिक्सेडिमा बाय थायरॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद उसको थायरॉक्सिन की रिप्लेसमेंट पे डालें मिक्सेडिमा ट्रीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, नाउ वी अनदर हम जो डिफरेंट हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में हो तो हम क्या करेंगे, डोज बढ़ा देनी है हमने T4 की बाय 25 to 30% प्रेगनेंसी में। ठीक है, इस तरीके से अगर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में फॉर एग्जांपल T4 के लेवल्स कम है लेकिन जो TSH है वो नॉर्मल आ रहा है। ठीक है, T4 कम है लेकिन TSH नॉर्मल आ रहा है। हमने बताया था कि TSH उसमें क्या होगा, नॉर्मली हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है कि T4 के लेवल्स कम होते हैं और TSH हाई होता है। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक वो के जरिए जो है वो TSH ज्यादा रिलीज होता है कि ज्यादा रिलीज। लेकिन इसमें सब क्लिनिकल में क्या होता है, इसमें पूरी पिक्चर नहीं आ रही होती, इसमें TSH नॉर्मल शो हो रहा होता है और T4 के लेवल्स कम होते हैं। ठीक है, ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म में मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मैंने माइड्रॉन का ये भी आज बात भी हो रही है। इसमें हमने क्या करना है, विड्रॉ करना है ड्रग को और ओरल T4 थेरेपी देनी है। अगर सपोज अगर कोई ऐसी इंडिकेशन है जिसमें हम ड्रग स्टॉप नहीं कर सकते, बहुत नेसेसरी है उसके लिए लेना, तो फिर हम ओरल T4 थेरेपी देंगे। ठीक है। अच्छा, एमाइड्रॉन अगर इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म है तो गिव T4 इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। अगर सपोज अगर आपने ऐसा पेशेंट जिसमें कि ज्यादा इंडिकेशन नहीं है, यू कैन स्टॉप द ड्रग। ठीक है, आपने स्टॉप कर दिया ड्रग को तो फिर आपने ड्रग को स्टॉप करने के बाद यू हैव टू गिव T4। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इफ यू रिमेंबर मैंने आपको माइड्रॉन पढ़ाई थी। ठीक है, तो मैंने बताया था कि माइड्रॉन की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, इसकी टिश्यू बाइंडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसके इफेक्ट्स इस वजह से मेंटेन रहते हैं फॉर 1 to 3 मंथ्स। तो इस वजह से हमने क्या करना है, T4 के लेवल्स देने जब तक माइड्रॉन के इफेक्ट्स जो हैं वो खत्म ना हो जाए, तब तक वी हैव टू गिव द रिप्लेसमेंट ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नाउ गोइटर। ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ पेशेंट विद गोइटर। इसमें क्या होती है, थायरॉइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट हो जाती है। बेसिकली डिफरेंट गोइट्रोजेंस हम कहते हैं, ये एजेंट्स होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं,
सप्रेस करते हैं सिक्रीशन T3 और T4 की टू सब नॉर्मल लेवल्स पे ले आते हैं, और TSH को अल्टीमेटली क्या होगा, TSH इंक्रीज होगा विच प्रोड्यूसेस गोइटर, ठीक है। T3 T4 के लेवल्स कम कर रहे हैं, उसके नतीजे में क्या हो रहा है, TSH का लेवल बढ़ रहा है, TSH ग्लैंड को कह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो T3 T4 को, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज बढ़ जाता है गोइटर का। अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड का गोइटर हो जाता है, अगर गोइटर सपोज अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, तो हमने क्या करना है, डेली आयोडाइड इनटेक करना है 15 to 200 माइक्रोग्राम, ठीक है, और लेनी है, ठीक है, क्योंकि डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड की इनलार्जमेंट जिसमें गोइटर हो रहा है, इसको मैनेजमेंट हमने प्रोफाइलेक्टिक आयोडाइड भी देनी है, जैसे आयोडाइज टायर्स आपने बहुत चुके, हमारे घरों में भी यूज हो रहा है, इसको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज भी किया गया है, अवेयरनेस इंट्रोड्यूस की गई है कि आप आयोडाइज सॉल्ट यूज करें या आयोडीन फ्लोर या ब्रेड में यूज करें, ठीक है। इसके अलावा आयोडाइज पॉपी सीड ऑयल भी दिया जा सकता है, आईवी इंजेक्शन अगर बहुत ज्यादा सिवियर डेफिशिएंसी है तो उसमें दिया जा सकता है, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर टेबल शोइंग, जिसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से जो है, जो गोइटर है ये इसमें गोइटर किन किन कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो हमने कहा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या हमने ड्रग इंड्यूस्ड भी हो सकता है, या हाइपोथायरॉयडिज्म आपको बताया हुआ है, इसमें किस डिग्री का हाइपोथायरॉयडिज्म का, सपोज आपके पास जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, अगर हाशिमोटोस थायराइडाइटिस की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, इस हाशिमोटोस थायराइडाइटिस में क्या होता है, बेसिकली ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाती है थायराइड की, और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गोइटर प्रेजेंट होता है अर्ली और फिर बाद में एब्सेंट हो जाता है, और डिग्री ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें माइल्ड टू सिवियर होता है। अगर ड्रग इंड्यूस्ड हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें क्या हो रही है कि बेसिकली ये ड्रग जाके जो सिंथेसिस होनी है हार्मोन्स की थायराइड ग्लैंड में, उसकी हार्मोन फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है, और इसमें प्रेजेंट होता है गोइटर, ठीक है, और हाइपोथायरॉयडिज्म माइल्ड टू मॉडरेट होता है। अगर डिसहार्मोनोजेनेसिस हो रही है, हार्मोन्स की खुद की हार्मोन सिंथेसिस सही नहीं होती, इसमें इम्पेयर सिंथेसिस ऑफ T4 होता है, ड्यू टू एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से T4 की सिंथेसिस नहीं हो रही है सपोज, इसमें भी गोइटर प्रेजेंट होता है, माइल्ड टू सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी रेडिएशंस की वजह से, एक्सरेज की वजह से, या रेडियोएक्टिव आयोडीन की वजह से, या थायराइडेक्टमी हो गई है उसकी वजह से, तो इसमें क्या होगी, बेसिकली डिस्ट्रक्शन हो जाएगी ग्लैंड की, इसमें गोइटर एब्सेंट होगा और इसमें सिवियर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर फॉर एग्जांपल कॉन्जेनाइटल है हाइपोथायरॉयडिज्म, क्रेटिनिज्म जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एक्टोपिक थायराइड होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, TSH रिसेप्टर ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज होती हैं इसमें, ठीक है, इसमें गोइटर एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म सिवियर होगा, ठीक है। अगर किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है, सेकेंडरी कॉज फॉर एग्जांपल TSH की डेफिशिएंसी, TSH रिलीज ही नहीं हो रहा पिट्यूटरी से फॉर एनी रीजन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डिजीज है जिसकी वजह से TSH रिलीज नहीं हो रहा, उसमें क्या होगा, goiter absent over mild hypothyroidism होगा, ठीक है। Now I have a assessment. If you would have been present, you will have to answer me. Now you will answer me this in your assignment, ठीक है। 45-year-old लड़की present कर रहा है OPT में, present कर रही है खातून with complaint of cold extremities and sluggishness and weight gains है। After complete workup, physician made diagnosis of hypothyroidism. Which of the following will be drug of choice for treatment of this? आपने बतानी है कि इस पेशेंट को हम कौन सी ड्रग देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नाउ अगेन अब एक और हमारे पास है दिस टेबल, अब नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू हम हाइपरथायरॉयडिज्म या थायरोटॉक्सिकोसिस की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने फिर डिफरेंशिएट करना है कि पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म का है या थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म का है, तो उसमें क्या होगा, इसमें फॉर एग्जांपल थायरोटॉक्सिकोसिस या हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगी, स्किन वार्म होगी, स्वेटिंग होगी, पेशेंट को हीट इंटॉलरेंस होगी, थिन ईयर्स होंगे, ठीक है, पेरिटिबल डर्मोपैथी होगी कि फॉर एग्जांपल ग्रेव डिजीज के पेशेंट। जबकि हाइपो में क्या होगा, पेशेंट पेल होगा, कूल होगी, पफी स्किन होगी, ड्राई और ब्रिटल हेयर्स होंगे, ब्रिटल नीज होंगे। आईज और फेस को देखोगे तो थायरोटॉक्सिकोसिस में अपर लिड रिट्रैक्ट हो जाएगी, जिसमें ग्रेव डिजीज के पेशेंट में आपको पेशेंट दिखाई देना एक्सोप्थेल्मोस की, इसमें अपर लिड रिट्रैक्ट ऊपर की तरफ चली जाएगी, विद वाइट स्टेयर कर रही होगी। इसके अलावा पेरिऑर्बिटल एडिमा भी हो सकता है, एक्सोप्थेल्मस होगा, या डिप्लोपिया होगा, जैसे ग्रेव डिजीज के पेशेंट में आपको दिखाया था। जबकि इस हाइपो में क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स नीचे गिर रही होती है, पेरिऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, लॉस ऑफ टेम्पोरल एस्पेक्ट्स ऑफ आईब्रोज, पफी फेस हो जाएगा, नॉन पिटिंग फेशिस होगा, या टंग लार्ज हो जाएगी। इसी के सीवीएस में क्या इफेक्ट्स आएंगे, थायरोटॉक्सिकोसिस में पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, पल्स प्रेशर सब बढ़े हुए होंगे, एरिथमिया से जाए। जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, पेरिफेरल वैस्कुलर इंक्रीज जाएगा, इसमें सब डिक्रीज हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया, प्रोलॉन्ग पीरियड इंटरवल। जबकि रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसमें डिस्निया होगा, ठीक है,
सांस फूलेगा, इसमें क्या होगी, हाइपोवेंटिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन होगी। सिमिलरली जीआई में क्या होगी, इसमें एपेटाइट बड़ी होगी, ज्यादा से ज्यादा खाना खा, बॉल मूवमेंट्स बड़े होंगे। इसमें क्या होगी, भूख ही नहीं लग रही है, एपेटाइट डिक्रीज होगी, बॉल मूवमेंट्स डिक्रीज होगी, एसाइटीज भी हो सकती है। सीएनएस में इसमें नर्वसनेस और हाइपरकाइनेसिया होगा, जिसमें इसमें लेथार्जी होगी, स्लोइंग ऑफ मेंटल प्रोसेसेस हो जाएगी, न्यूरोपैथीज हो सकती है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में तो हाइपोथायरॉइड में वीकनेस होगी, मसल फटीग होगी, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हुए होंगे, हाइपरकैल्सियम हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होंगे, मसल स्टिफ हो जाएंगे, डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे, ठीक है। और ये हार्मोन्स अल्कलाइन फॉस्फेटाइल इंक्रीज जाएंगे। रीनल में क्या होगा, इसमें माइल्ड पॉलीयूरिया होगा, इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो होगा, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रहेगी, इसमें सारी चीजें इंक्रीज होगी, बॉडी मेटाबॉलिज्म सब जो कि इसमें इम्पेयर्ड हो जाएगी वाटर एक्सक्रीशन, बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज रीनल ब्लड होगा, डिक्रीज वाटर फिल्ट्रेशन रेट होगा। हेमेटोपोइसिस में गेन, यहाँ पे इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस, यहाँ पे डिक्रीज है, प्रोजेक्शन में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें हाइपरमिनोरिया, इनफर्टिलिटी, डिक्रीज लिबिडो, इम्पोटेंस, ओलिगोस्पर्मिया, इस तरीके से होगा। मेटाबॉलिक सिस्टम इसमें सारी इंक्रीज है, इसमें डिक्रीज है मेटाबॉलिक। अच्छा, now we have a case scenario, 35-year-old woman presented to OPD with complaint of weight loss हो रही है, उसको restlessness है, sweaty palms and soles होते हैं, insomnia होता है, and she fears that she may have something wrong with her heart. She describes her heart is jumping out of her chest. She feels healthy otherwise and reports she has lots of energy. So what's your prognosis? Yes, this is a case of hyperthyroidism. Now we discuss the hyperthyroidism. इसमें होता है क्या, इंक्रीज लेवल्स ऑफ T4 T3 है, मैं आपको ये देखो एक्सोथैलेमस हो गया, स्टेयर कर रही है, यहाँ पे लिड लैग हो रहा है, ऊपर लिड लैग होता है, ठीक है। एंजाइटी है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है। इंक्रीज एपेटाइट है बट वेट लॉस है, हीट इंटॉलरेंस है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, टेकिकार्डिया है, पाल्पिटेशन है, डेड लैग इन रिट्रैक्शन एंड ट्रेमर्स, ठीक है। हाई ट्रीटमेंट क्या है हाइपरथायरॉइडिज्म की, हाइपरथायरॉइडिज्म अगर हाई लेवल से था, तो उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, या तो हम क्या करें कि हम सॉरी इसको सर्जिकल रिमूव कर दें, पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड या ऑल थायराइड का बहुत ज्यादा हाइपरथायरॉइडिज्म, या तो एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम रिमूव करें, या तो क्या करें हम एंटी थायराइड ड्रग्स दें। तीसरी ऑप्शन हमारे पास क्या है, हम रेडियो एक्टिव आयोडीन के जरिए क्या करें, ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दें। ये तीन हमारे पास हैं, तो वी विल मेनली डिस्कस दीज एंटी थायराइड ड्रग्स एंड वील हैव अ लुक एट दिस रेडियो एक्टिव आयोडीन ड्रग, रेडियो एक्टिव आयोडीन टू। नाउ वी कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ थायराइड एजेंट्स, ये पहले भी हम आप डिस्कस कर रहे हैं, अगेन हम इस पे करेंगे कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ ड्रग व्हिच इज नोन एज थायोमाइड, जो पहले डिस्कस किए। थायोमाइड्स में प्रोपाइल थायरोसिल है, कार्बेमेजोल है, मेथिमेजोल है। ये किसको इनहिबिट कर रही थी, इस ऑर्गेनिफिकेशन के स्टेप को इनहिबिट करेगी। देन वी हैव एनाइन इनहिबिटर्स, जो कि यहाँ पे आयोडाइड के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहे थे, परक्लोरेट, परटेक्नेट, थायोसाइनेट। देन वी हैव आयोडाइड्स है हमारे पास, ठीक है। ये आयोडाइड्स है जो कि ग्लूकोज सॉल्यूशन में आता है, आयोडीन, तो ये क्या करेगी, प्रोटियोलिसिस को इनहिबिट करेगी, ठीक है। देन वी हैव पोटेशियम आयोडाइड, ये भी आयोडाइड्स जो है बेसिकली टू तरह के, ग्लूकोज सॉल्यूशन में आयोडीन होता है, पोटेशियम आयोडाइड में potassium iodide होगा। Then we have fourth group of drug, that is iodinated contrast media. आइजोनेटेड कंट्रास्ट मीडिया जो है, इसमें क्या होता है, दो ड्रग्स है मेरे पास, डाइट्रोजाइड आयोक्सोल है, ठीक है, सारी एंटी थायराइड। रेडियो एक्टिव आयोडीन है मेरे पास, I-131, ठीक है। देन वी हैव एडजंक्ट्स ग्रुप से, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हम यूज कर रहे हैं ताकि उसका जो टेकिकार्डिया है, जिसके ट्रेमर्स हैं, उसको कम किया जाए। अगर बीटा ब्लॉकर्स यूज नहीं कर सकते तो फिर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, या हम बार्बिट्रेट्स देंगे, फिनोबार्बिटॉन। वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेंगे, T4 को ज्यादा से ज्यादा बॉडी से मेटाबॉलाइज करके एक्सक्रीट आउट कराएंगे। या फिर हम बायोलाइसिस सीक्वेस्ट्रेंस देंगे, कॉस्टायरामिन क्या करेगी, जो रिब्जॉर्प्शन हो रही है T4 की बॉडी में, उसको रिड्यूस करेंगे। या फिर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोन। हम विल डिस्कस दिस ग्रुप वन बाय वन इंडिविजुअली, बिगिनिंग विद द थायमाइड्स। इसमें हमारे पास तीन तरह की ड्रग्स हैं, प्रोपाइल थायरोसिल, मेथिमेजोल एंड कार्बेमेजोल। बेसिकली जो कार्बेमेजोल एक प्रो ड्रग है जो कि कन्वर्ट होती है मेथिमेजोल में, एंड मेथिमेजोल जो वो 10 टाइम्स ज्यादा पोटेंट है देन प्रोपाइल थायरोसिल, जिस मोर पोटेंट, ठीक है। एंड दे आर द मेजर ड्रग यूज्ड फॉर थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। नाउ अगर उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स देखें प्रोपाइल थायरोसिल मेथिमेजोल की, ओरली हम देते हैं, रैपिड एब्जॉर्प्शन है, मेथिमेजोल तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, और मेथिमेजोल जो है मेटाबोलाइज हो जाती है टू ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेट, यूरिन में एक्सक्रीट होती है विदिन 24 आवर्स। दोनों क्रॉस कर रही, बोथ क्रॉस प्रेजेंट चल रही है, एंड आर कंसिडरिंग फीटल थायराइड, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। सो हम जो प्रोपाइल थायरोसिल है ये ज्यादा जो है प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होती है देन मेथिमेजोल, तो ये प्रिफर्ड की जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज कम्पेयर टू मेथिमेजोल।
अगर प्रेग्नेंट हो गई है लेडी तो वी विल प्रेफर द प्रोपाइल थायरोसिल बिकॉज इट इज मोर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। दोनों ड्रग्स ब्रेस्ट में सिक्रीट होती हैं, स्मॉल क्वांटिटीज हैं, स्मॉल क्वांटिटीज की, तो इस वजह से सक्लिंग के दौरान या ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम कंपैरिजन करें प्रोपाइल थायरोसिल और कार्बेंडाजोल का, तो प्रोपाइल थायरोसिल की पोटेंसी कम है, कार्बेंडाजोल ये जो कन्वर्ट हुई थी मेथिमेजोल इसकी ज्यादा है, इसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, इस वजह से हम इसको प्रेगनेंसी में दे रहे हैं, इसकी लेस है। ट्रांसफर अक्रॉस प्लेसेंटा लेस होगा इसका ज्यादा है, इस वजह से प्रेगनेंसी में प्रेजेंस ऑफ मिल्क ये लेस होती है, वो ज्यादा होता है। ठीक है, प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी 1 to 2 आवर्स है, इसकी 6 to 10 आवर्स है, ड्यूरेशन ऑफ इसका 4 to 8 आवर्स है, 12 to 24 है, एक्टिव मेटाबोलाइट्स कोई नहीं है, इसका है दैट इज मेथिमेजोल है। डोजिंग फ्रीक्वेंसी इसकी मल्टीपल है, इसकी ओडी है। पेरिफेरल कन्वर्जन जो है T4 ये इनहिबिट कर रही होती है, इसका पेरिफेरल कन्वर्जन पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायमाइड्स में है, तो इट इनहिबिट्स हार्मोन सिंथेसिस को रोक रही है यहाँ पर ऑर्गेनिफिकेशन को। इसके अलावा ये इनहिबिट कर रही है पेरिफेरल कन्वर्जन जो हो रही है T4 की T3 में, उसको भी इनहिबिट कर रही है। जो इनहिबिशन ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन बाय थायराइड परऑक्सीडेज। ठीक है, आयोडाइड को आयोडीन में या परऑक्सीडेज को भी इनहिबिट कर रही होती है। और सेकेंडरी स्टेप जो आयोडीन की जो ऑर्गेनिफिकेशन है उसको भी इनहिबिट कर रही होती है, बट दे डू नॉट ब्लॉक अपटेक ऑफ आयोडीन। लेकिन यहाँ पे से कोई इफेक्ट नहीं है, इससे यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इसकी अपटेक को ब्लॉक नहीं कर रही होती। द ऑनसेट ऑफ एक्शन जो विद इन 3 to 4 वीक्स होता है आफ्टर द स्टोर्स ऑफ T4 आर, जब T4 के सारे स्टोर्स डिप्लीट हो जाएंगे तब इसके एक्शन जो है वो दिखेंगे, क्योंकि मजीद फिर T4 की सिंथेसिस नहीं देगा। अच्छा, ये एक और एनिमेशन है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है आयोडाइड अंदर आया है और इसकी गैनिफिकेशन हो रही है, और ये प्रोपाइल थायरोसिल ब्लॉक्स कर रहा है आयोडीनेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। नाउ वी कमिंग टू थेरेपेटिक यूजेस, हम कहाँ यूज करेंगे? हाइपरथायराइडिज्म में या थायराइडॉक्सिक केसेस में, फॉर एग्जांपल ग्रेव्स डिजीज या डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर में या टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर में हम देंगे थायमाइड्स, हम प्रायर टू सर्जरी देंगे, या हम इसको यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विद रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 पॉइंट इनिशियल पीरियड ऑफ 8 वीक्स। अपना रेडियोथेरेपी देने से पहले इनिशियली हम थायमाइड्स दें, ताकि जो है उसका जो है सिंथेसिस डिक्रीज हो, थायराइड ग्लैंड का की सिंथेसिस को डिक्रीज होने के लिए करने के लिए। देन वी हैव सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, इसमें नॉर्मल थायराइड हार्मोन हाई TSH है। ठीक है, अगर TSH लेवल्स जो हैं वो, इसमें नॉर्मल थायराइड हार्मोन है और हाई TSH है, तो TSH लेवल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, 10 मिली यूनिट्स पर लीटर हो जाए, ठीक है, तो उसमें हम फिर थायमाइड्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एमाइड्रॉन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, तो सबक्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में TSH के लेवल्स बढ़े हुए हैं और T4 के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल है। तो हम अगर ज्यादा है 10 मिली यूनिट से TSH के लेवल आए तो हम थायमाइड्स देंगे। देन वी कमिंग टू एमाइड्रॉन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म, इसके अंदर भी हमें कहा था कि एमाइड्रॉन की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से हम, अच्छा थोड़ा इसको मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करूंगी, इसमें जो प्रीवियसली थोड़ा सा रिवर्स हुआ है। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, TSH के लेवल्स बेसिकली हाई हुए हैं और T4 नॉर्मल थायराइड हार्मोन्स के लेवल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, सो आई रेक्टिफाइड हियर। तो उसमें अगर TSH के लेवल्स जो है वो 10 यूनिट से बढ़े हुए तो देन वी गो फॉर थायमाइड। सिमिलरली अगर एमाइड्रॉन यूज हाइपरथायराइडिज्म, क्योंकि एमाइड्रॉन की लॉन्ग हाफ लाइफ है, तो इस वजह से जो है हम उसके इफेक्ट्स रहेंगे 3 to 4 months, so we give them thiamides। ठीक है, अच्छा एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है? इट अकर्स इन 3 to 12% ऑफ पेशेंट्स। कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? नॉजिया, GIG, डिस्ट्रेस करा सकता है, ऑल्टर्ड टेस्ट एंड स्मेल विद मेथिमेजोल होती है, मैक्यूलोपैपुलर ड्राइटिक रैश हो सकता है। मोस्ट कॉमन इज 4 to 6%, मे बी अकम्पाइंड बाय फीवर। जो रेयर एडवर्स इफेक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है दैट इज एग्रेनुलोसाइटोसिस, यू शुड बी वेरी you should remember it था। मैं जो पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रेड बस है वो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। इसके अलावा ल्यूपस लाइक रिएक्शन भी हो सकते हैं, पैराटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, टेराटोजेनिक इफेक्ट्स भी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रेनुलोसाइटोसिस हो गया है, रिवर्सिबल एक ग्रेनुलोसाइटोसिस है जिसमें ग्रेनुलोसाइट काउंट लेस देन 500 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब है, तो ये बहुत डेंजरस है। इट अकर्स 0.1 to 0.5% पेशेंट्स में होता है। इट इज रिवर्सिबल है, ऑन स्टॉपिंग द ड्रग करते हैं तो रिवर्सिबल हो जाता है। और ये प्रेजेंट कैसे करता है? सोर थ्रोट के साथ या हाई फीवर के साथ, और इस वजह से हम हमेशा CP कराते हैं और इसमें क्या कर रहे होते हैं, ग्रेनुलोसाइट का कम आ रहा होता है। इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम सबसे पहले ड्रग को स्टॉप करेंगे, फिर हम एप्रोप्रिएट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे जिसमें इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट से कम हुए हैं, बॉडी फाइट नहीं कर सकते, हम एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा हम ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के देंगे जो कि रिकवर करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के। ठीक है, अच्छा क्रॉस सेंसिटिविटी जो प्रोपाइल थायरोसिल मेथिमेजोल की है वो 50% है। तो अगर हम ये सोचेंगे स्विच कर रहे हैं ड्रग्स को विद सिवियर रिएक्शन, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड। हम सेम ग्रुप की ड्रग्स में क्रॉस सेंसिटिविटी है 50%, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ठीक है,
अच्छा, सो मूविंग फॉरवर्ड टू अदर एडवर्स इफेक्ट्स, हमने कहा कि प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक है, ह्यूमन और फीटल रिस्क है, तो अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। और अगर हमने देनी भी है, मैंडेटरी है अगर हमने देना है, तो हम पैरावाइल थायरोसिड देंगे बिकॉज इट इज मोर स्ट्रांगली बाउंड, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है और प्लासेंटा को जो है क्रॉस जो है वो लेस करता है। इसके अलावा मेथिमेजोल में देखा गया है क्योंकि कंजनाइटल एब्नॉर्मलिटीज इसके साथ रिपोर्ट हुई है। अच्छा, now we have a MCQ again. 35-year-old lady in her second pregnancy diagnosed as a case of subclinical hyperthyroidism हुआ है इसको. Which of the following will be drug of choice हम pregnancy में कौन सी use करें? I've told you, you will tell me in assignment. Now we coming to second group of drugs, that is anion inhibitors. ये monovalent anions होते हैं जैसे perchlorate, pertechnetate, thiocyanate. ये क्या करते हैं? Blocked uptake of iodide by gland due to competitive inhibition कर रहे होते हैं यहाँ पे active transport of iodide by sodium iodide importer. ठीक है। अच्छा, इसके जो इफेक्ट्स हैं ओवरकम हो सकते हैं अगर फॉर एग्जांपल आयोडाइड के लेवल बढ़ जाए, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, तो वो इसको छोड़ के खुद ज्यादा है, तो इसकी इफेक्टिवनेस इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अच्छा, इसके थेरेपेटिक यूज हम कहाँ यूज करते हैं? टू ब्लॉक थायराइडल अपटेक ऑफ आयोडाइड इन पेशेंट्स विद आयोडाइड इंड्यूस्ड हाइपोथायराइडिज्म, एमाइड्रोन से एमाइड्रोन में आयोडाइड इंड्यूस हो तो उसके अंदर हम स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं दीज एनाइन इनहिबिटर्स। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? परक्लोरेट जो है वो एसोसिएटेड है विद एप्लास्टिक एनीमिया। Achha, now we moving to iodides. Basically, iodides were the majority anti-thyroid drugs before thiamides इंट्रोड्यूस हुई 1940 में। इससे पहले आयोडाइड्स काफी यूज हुई, लेकिन अब ये रेयरली यूज होती हैं एज सोल थेरेपी। हम इसको रेयरली यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। हमारे पास कौन कौन से प्रिपरेशंस हैं? पोटेशियम आयोडाइड है जो सॉल्यूशंस टैबलेट्स की फॉर्म में, वी हैव आल्सो लिगोज सॉल्यूशन जिसमें आयोडीन है 50 मिलीग्राम पर एमएल एंड पोटेशियम आयोडाइड 100 मिलीग्राम पर एमएल। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आयोडाइड्स क्या है? ये क्या कर रही है? इनहिबिट्स रिलीज ऑफ, जैसे हमने यहाँ पहले भी देखा था, ये T4 T3 के रिलीज को इनहिबिट कर रही है फ्रॉम थायरोग्लोबुलिन एंड रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स इन सर्कुलेशन भी इनहिबिट कर रही है। ठीक है। सेकेंडली ये इनहिबिट क्या कर रही है? यहाँ पे भी हमने देखा कि ऑर्गेनिफिकेशन को भी इनहिबिट कर रही है। ठीक है, सो प्रोटियोलिसिस को इनहिबिट कर रही है, ऑर्गेनिफिकेशन को इनहिबिट कर रही है, जिसमें आयोडाइड की कन्वर्जन जो है आयोडीन में नहीं होने दे रही है। ठीक है, ऑर्गेनिफिकेशन नहीं होने दे रही है, मोनोआयोडाइजीन और डाइड्राइजीन नहीं बनने दे रही, और इम्प्रूवमेंट इसको लेने के बाद अब हो जाती है विद इन 2 to 7 days। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा कि ये एक तो वेस्कुलरिटी को डिक्रीज करेगा, थायराइड की साइज को, हाइपरप्लास्टिक ग्लैंड को डिक्रीज कर देगा, और ये कहाँ वैल्यूबल है? प्री ऑपरेटिवली बहुत ही इट्स वैल्यूबल फॉर थायराइडेक्टमी अगर हमने करनी है और हम साइज रिड्यूस करना चाह रहे हैं थायराइड ग्लैंड का, उसकी वेस्कुलरिटी डिक्रीज करना चाहिए, तो वी कैन गिव द आयोडाइड्स प्री ऑपरेटिवली। ओके, एंड इट्स इसको अगर हम गिवन अलोन, अगर सपोज हम इसको अकेले देते हैं तो ग्लैंड क्या करता है? स्किप कर देता है आयोडाइड ब्लॉक इन 2 to 8 weeks। ये जो आयोडाइड ब्लॉक यहाँ पे होना होता है उसको स्किप कर देता है, एंड और अगर हम इसको हम विड्रॉ करें तो उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा आयोडिनेशन होनी है, एक्सार्बेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस होनी है इन आयोडीन रिच ग्लैंड, क्योंकि आयोडीन बहुत ज्यादा यहाँ मौजूद है, को बहुत ज्यादा जो है वो ऑर्गेनिफिकेशन होगी और थायरोटॉक्सिकोसिस लीड कर सकता है। तो इस वजह से हम इसको बेसिकली इन कॉम्बिनेशन देते हैं। अच्छा, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम? थायराइड स्टॉर्म में, टू रिटार्ड द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। ठीक है, प्री ऑपरेटिवली हम यूज कर रहे हैं थायराइडेक्टमी इन ग्रेव्स डिजीज इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। इन रेडिएशन इमरजेंसीज में हम यूज कर सकते हैं इन्वॉल्विंग रिलीज ऑफ रेडियोएक्टिव आयोडीनाइज्ड ड्रॉप्स। iodide blocking effect of potassium iodide can protect the gland from subsequent damage if given before radiation to exposure। ठीक है। अच्छा, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं आपने? इसको गिवन आफ्टर थायमाइड्स, ठीक है, गिव आफ्टर थायमाइड्स पहले आप कॉम्बिनेशन में दोगे, थायमाइड्स पहले दें फिर उसके बाद ये दें। इट में डिले द ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ थायमाइड्स ड्यू टू इंक्रीज स्टोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, सो डू नॉट यूज अलोन नहीं करना आपने, बिकॉज ग्लैंड एस्केप कर सकता है आयोडाइड ब्लॉक को इन 2 to 8 weeks एंड रिस्क ऑफ एक्सैजरेशन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस एंड विड्रॉल हो सकता है। और सेकेंडली यू हैव टू अवॉइड chronic use in pregnancy because it may cause the fetal coitum। अच्छा, टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है आयोडाइड्स की? रिवर्सिबल आयोडिज्म हो सकता है जो कि अनकॉमन है लेकिन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि कॉम्ब्राइज होता है, स्वॉलन साइवी ग्लैंड्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन अल्सरेशंस हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस, राइनोरिया, ड्रग फीवर, मेटालिक टेस्ट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एनाफिलेक्सिस रेयरली देखा गया है, फीटल कोइटर है हो सकता है अगर प्रेगनेंसी में यूज किए गए आयोडाइड्स। ससेप्टेबल पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों हो सकते हैं। हाइपो तब होगा तो ब्लॉक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जब ज्यादा सेंसिटिव हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। Now we coming to another group of drugs which is iodinated contrast media।
ठीक है। सो आइजोनिक वी हैव टू ड्रग डाइट्रोजेट ओरली देते हैं, आयोक्सोल हम आईवी देते हैं। ये क्या करती है, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 इन पेरिफेरल टिश्यू में यहाँ पे जो T4 टू T3 है इसकी पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है। अच्छा, इट इज डू नॉट इंटरफेयर विद रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 रोटेशन के साथ इंटरफेयर नहीं करती। इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी आयोडाइड की तरह है जिसे हमने पीछे हमने पढ़े। इसको हम कहाँ यूज करें, ये भी एडजंक्ट्स के तौर पर यूज होता है थायराइड स्टोन में, बिकॉज प्रोड्यूस रैपिड इंप्रूवमेंट साइन सिम्टम्स। इसके अलावा हम इसको ऑल्टरनेटिव टू आयोडाइड्स यूज कर सकते हैं या थायोमाइड्स व्हेन दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरथायराइडिज्म, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो आयोडाइड, तो हम उसको आयोडीनेटेड रेडियो कंट्रास्ट मीडिया यूज कर सकते हैं। Now we coming to radioactive iodine 131 is only isotope used for treatment. Other isotopes are used for diagnosis के लिए हम use करते हैं, ये हम treatment के लिए use करते हैं। इसको हम given orally अगर दें तो सोडियम आयोडाइड 131 solution के तौर पे देते हैं, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर जाकर थायराइड में कंसंट्रेट करता है और फॉलिकल्स में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। वहां पे फिर जाके क्या करता है, ये बीटा रेज इमिट करता है जिसकी हाफ लाइफ 5 डेज होती है एंड पेनिट्रेशन रेंज 400 to 2000 माइक्रोमीटर्स होती है। विद इन अ फ्यू वीक्स क्या हो जाता है, सारा थायराइड पैरेन्काइमा डिस्ट्रॉय हो जाता है। एपिथेलियल स्वेलिंग और नेक्रोसिस, फॉलिकुलर डिस्ट्रक्शन, एडीमा और ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेशन देखी जाती है। फिर 6 to 12 वीक्स के बाद क्या होता है, ग्लैंड जो श्रिंक कर जाता है साइज में, पेशेंट यूजुअली बिकम यूथायराइड और हाइपोथायराइड। इसकी इंडिकेशंस कब देंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म में या ग्रेव डिजीज में देंगे। और इट इज प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स जो वो जिनकी 21 ईयर से एज ज्यादा हो, उनमें हम देते हैं, इनसे कम के पेशेंट्स में नहीं देते हैं, क्योंकि जेनेटिकली ये रेज हुई है तो जीन्स की म्यूटेशंस और उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों में, स्पेशली यंग एज में। एडवांटेजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन क्या है, इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इफेक्टिव है, लो एक्सपेंस है, एब्सेंस ऑफ पेन है। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स क्या आ सकता है, परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म करा सकती है 80% केसेस में। सीरम फ्री T4 और TSH के लेवल्स हमने मॉनिटर रेगुलरली करने होते हैं। ठीक है, अगर परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो गया फिर हमने इसको रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी होगी एल-थायरॉक्सिन की। अच्छा, fears of radiation induced genetic damage, leukemia and neoplasia have not been realized after more than 50 years of clinical experience में हमने नहीं देखे, उन्होंने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में कि fears of radiation नहीं देखे, जेनेटिक डैमेज हो बहुत ज्यादा लेटर एडल्ट लाइफ। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉस्टिंग क्या है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आपने बहुत बिकॉज ये क्रॉस करा प्लेसेंटा को, ब्रेस्ट में सीक्रेट हो रहा है, प्रोड्यूस हाइपोटेसिस फीटस हो सकता है जिसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड। पेशेंट अंडर 21 इयर्स ऑफ एज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। एल्डरली पेशेंट्स जिनमें हार्ट डिजीज है, सिवियर थायराइडॉक्सिक केसेस में मेक द पेशेंट यूथायराइड by thiamide before giving radioactive 131। ठीक है। अच्छा, और do not use iodides prior to radioactive iodine। radioactive iodine से पहले जो है आपने iodides यूज नहीं करने, because they both are iodine contain। अच्छा, now coming to beta blockers, with हमने यूज करने हैं without ISA, intrinsic sympathomimetic activity like metoprolol, atenolol and propranolol। अच्छा, मैकेनिज्म एक्शन क्या है बीटा ब्लॉकर्स का, स्पेशली बीटा 1 इन हार्ट क्या है, hyperthyroidism में many of the symptoms mimic sympathetic stimulation, there is tachycardia and back तो increase number of beta receptor, तो beta receptor में signals enhanced हुए हैं। ठीक है, प्रोप्रानोलॉल क्या करेगा, ब्लॉक करेगा ऑल्सो, एक तो वहां पे उनको वो कर रहा है, दूसरा जो है पेरिफेरल कन्वर्जन को भी ब्लॉक कर रहा है T4 को T3 में। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट देखी जाती है सिम्टम्स में, बट इट डू नॉट ऑल्टर थायराइड हार्मोन लेवल्स। जो क्लिनिकल जो दूसरे थायराइडॉक्सिक टैकीकार्डिया है, ट्रेमर्स हैं, उनको जो है ये इम्प्रूव करता है। इट्स स्पेशली यूजफुल इन थायराइड स्टोन। अच्छा, उसके बाद हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कब देंगे, व्हेन दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स तो उसमें हम फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे जैसा। देन वी हैव बार्बिटूरेट्स जिसमें फिनोबार्बिटोन एक्सलेट करेगा मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन का बाय एंजाइम इंडक्शन और रैपिडली T4 के लेवल्स को डिक्रीज करेगा। उसके बाद कॉलस्टाइरामिन रैपिडली डिक्रीज करेगा T4 बाय इंक्रीजिंग फीकल एक्सक्रीशन ऑफ T4। देन भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से हम हाइड्रोकॉर्टिसोन, हम अगर डर्मोपैथी हो रही है तो हम टॉपिकली देंगे, या थर्मोपैथी हो रही है तो ओरली या टॉपिकली दे सकते हैं। एस्पिरिन एंसिड्स दे सकते हैं, तो फीवर हो रहा है या लोकल पेन हो रहा है उसके लिए दे सकते हैं। फिर एमाइड्रॉन हमारे पास ड्रग जिसके हम पहले भी काफी दफा जिक्र किया, ये आयोडीन कंटेनिंग एंटी अरेंजमेंट ड्रग है। ये प्रोड्यूस हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म बोथ। हाइपो कैसे प्रोड्यूस करती है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 नहीं होने देती। हाइपर कैसे प्रोड्यूस करती है, मे बी प्रोड्यूस बाय टू मैकेनिज्म। नंबर 1, एक तो आयोडीन इंड्यूस्ड मैकेनिज्म इन मल्टीनोडुलर गॉइटर ट्रीटमेंट इज बाय थायोमाइड्स एंड एनाइन। आयोडीन इंड्यूस्ड है तो वहां पे क्या कराएगी, सिंथेसिस कराएगी हार्मोन्स की, तो हाइपरथायराइडिज्म प्रोड्यूस करेगी। दूसरा क्या मैकेनिज्म, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म, जिसमें क्या होगी, लीकेज कराएगी हार्मोन्स इनटू सर्कुलेशन एंड इट इज ट्रीटेड बाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स।
Then we have Graves' disease or diffuse toxic goiter. It is the most common form of the hyperthyroidism और thyrotoxicosis. की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये एक autoimmune disorder है. इसमें बीटा लिम्फोसाइट पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंथेसाइज करती हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं टीएसएच रिसेप्टर्स को, थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं. Lymphocytes are not susceptible to negative feedback, so high levels of thyroid hormone at the same time TSH levels may be very low. ठीक है, spontaneous remission may occur, but generally patients require years of treatment. So लैब डायग्नोसिस कैसे करोगे? T4 T3 बढ़े हुए, फ्री T4 फ्री T3 बढ़ा हुआ है, TSH कम है. रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक जब आपने करके देखा तो वो इंक्रीज हुआ है ग्लैंड में. ठीक है, एंटी थायरोग्लोबुलिन थायरोपोसिस TSI आपने एंटीबॉडी प्रोफाइल कराया वो प्रेजेंट थी. ठीक है, तो मैनेजमेंट कैसे करोगे? कैन बी मैनेज, हम एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हैं, हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं बाय थायराइडेक्टमी, या फिर हम डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लैंड कर सकते हैं बाय रेडियोएक्टिव आयोडीन. ठीक है, अच्छा, यूज ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स अगर हम करें तो यंग पेशेंट्स में जिनमें स्मॉल ग्रेन ग्लैंड या माइल्ड डिजीज है तो थायमाइड्स यूज कर सकते हैं. प्रोपाइल थायरोसिमेथिक्स आर गिवन टिल स्पॉन्टेनियस रिमिशन ऑकर जनरली फॉर 12 to 18 months. अच्छा, 50 to 80% इंसिडेंस ऑफ रिलैप्स है. मेथिमिजोल हम प्रेफर्ड करते हैं सिवाय प्रेगनेंसी के. क्यों? और थायराइड स्ट्रॉन्ग के, बिकॉज इट हैज अ लोअर रिस्क ऑफ लिवर डैमेज एंड कैन बी गिवन वंस डेली. उसका हमने देखा था कि उसकी डोजिंग ज्यादा थी प्रोपाइलथेरोसिल की, और मेथिमिजोल हम ओडी दे सकते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर नहीं देना. ठीक है, अच्छा, द बेस्ट क्लिनिकल गाइड इज द साइज ऑफ गोइटर. आप देखो लैब टेस्ट कराओ और साइज ऑफ गोइटर देखो. ठीक है, कि लैब में सीरम लेवल्स इसके डिक्रीज हो रहे हैं नहीं T3 T4 के. अच्छा, अब नाउ वी कमिंग टू अनदर हाइपरथायरॉइडिज्म कंडीशन व्हिच इज थायराइड स्टॉर्म और थायरोटॉक्सिक क्राइसिस. में क्या होता है? थायराइड स्टॉर्म हाइपोथैलेमस से ज्यादा से ज्यादा रिलीज ज्यादा हार्मोनल रिलीज मेटाबॉलिज्म है. The sudden acute exacerbation of thyrotoxis और life threatening syndrome है which requires vigorous management. कैसे मैनेज करेंगे? बीटा ब्लॉकर्स देंगे, प्रोपेनोलॉल IV या orally to control tachycardia और cardiac manifestations. इसके अलावा diltiazem कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं अगर प्रोपेनोलॉल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. पोटेशियम आयोडाइड orally to reduce the release of hormones. Propylthyrosol orally to block the synthesis and peripheral conversion of T4 into T3 या thiamides है. ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन IV देंगे कि पेशेंट शॉक से प्रिवेंट हो, और पेरिफेरल कन्वर्जन भी जो T4 की T3 है वो भी इनहिबिट हो. फिनोबार्बिटॉन देंगे ताकि क्लियरेंस थायराइड की इंक्रीज हो. पॉलस्टाइरामिन देंगे ताकि एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो. सारी स्ट्रेटजीज हमने पीछे पढ़ी और थायराइड स्टॉर्म में हम अप्लाई करेंगे. सपोर्टिव थेरेपी हम देंगे टू कंट्रोल फीवर, हार्ट रेट, अंडरलाइंग डिजीज. और बहुत अगर बहुत सबसे भी रिजॉल्व नहीं होता देन लास्ट रिजल्ट वी हैव प्लाज्मा फेरेसिस और पेटोइंडाज टू रिमूव द थायराइड. So we have some special problems in thyrotoxicosis. अगर dermopathy हो रही है और pre-tibial edema की ये हो रहा हो तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं विद ऑक्लूसिव ड्रेसिंग. अगर थायरोटॉक्सिकोसिस प्रेगनेंसी में हो जाए तो हमने मिनिमम डोज देनी है प्रोपाइल थायरोसिल की फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिनिमम प्रोपाइल. फिर हम मेथिमिजोल रिमाइंडर तो प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा होता है जिसमें जो है मेनली ऑर्गन्स बनने होते हैं बॉडी के, तो वहाँ पे जो है वो फीटोटॉक्सिक, तो उसमें इनिशियली प्रोपाइल थायरोसिल एंड देन रिमाइंडर में हम मेथिमिजोल दे सकते हैं. इसके अलावा सब टोटल थायरॉइडेक्टमी में भी परफॉर्म ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर. ठीक है, अच्छा, कुछ स्पेशल फॉर्म जैसे ऑप्थेल्मोपैथी ऑक्जेथेल्मोस हो रहा है, इसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे कि ओरल प्रेडनिसोन का शॉर्ट कोर्स दे सकते हैं, या हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं आप हेड एलिवेट करके सोएं ताकि पेरी ऑर्बिटल एडीमा कम हो, या आर्टिफिशियल ईयर्स दे सकते हैं कॉर्नियल ड्राइंग जो हो रही है, या इरेडिएशन ऑफ पोस्टीरियर ऑर्बिट कर सकते हैं अगर स्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है पेशेंट में, या हम स्मोकिंग सेजेशन भी एडवाइस अगर कर रहा हो कोई स्मोकिंग पेशेंट हो तो, ताकि थैल्मोपैथी जो है वो प्रोग्रेस ना करे. सर्जिकल डिकम्प्रेशन कर सकते हैं आईलिड की, और आई मसल्स सर्जरी में भी रिक्वायर्ड. अच्छा, अब नाउ वी कमिंग टू न्यू नेटल अगर ग्रेव्स डिजीज हो रही है. इसमें क्या होता है? बेसिकली पैसेज होता है मैटरनल एंटीबॉडीज का थ्रू प्लेसेंटा स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड्स ऑफ न्यूनेट, और टू जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स टू फीटस भी हो सकता है, या तो जेनेटिक ट्रांसमिशन हुआ है या तो मैटरनल से एंटीबॉडी आई है थायरोइड प्रॉब्लम्स. लैब स्टडीज रिवील करती है एलिवेटेड फ्री T4 and marked T3 and low TSH in contrast to normal in whom TSH is elevated at birth. अच्छा, TSH receptor antibody is usually found in serum of both child and mother. ठीक है, अच्छा, मैनेजमेंट अगर हम न्यूनेटल BCC कैसे करेंगे? सेल्फ लिमिटेड है, सबसाइड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 12 weeks, coinciding with the fall in the infant's thyroid stimulating hormone receptor antibody level.
treatment is necessary because of severe metabolic stress the infant experiences. Treatment में क्या देंगे हम? Propyl thyroxine in a dose of 5 to 10 milligram per kilogram per day in divided doses at 8 hours TDS में देंगे. Lugol solution देंगे 1 drop every 8 hours. Propranolol देंगे 2 मिलीग्राम पर किलो पर डिवाइडेड डोजेस में. ठीक, केयरफुल सपोर्टिव थेरेपी एसेंशियल है. अगर इन्फेंट बहुत ज़्यादा इल हो गया तो ओरल प्रेडनिसोन 2 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे डिवाइडेड डोजेस दे सकते हैं, which will help block conversion of T4 to T3. These medications are gradually reduced as the clinical picture improves and can be discontinued by 6 to 12 weeks. अच्छा, अब subclinical hyperthyroidism is defined as suppressed TSH levels below normal range in conjunction with normal thyroid hormone levels. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? कार्डियक टॉक्सिसिटी हो रही है. For example, atrial fibrillation can occur in older persons. Hyperthyroidism हो रहा है. ठीक है, और ट्रीटमेंट हाइपरथायरॉइडिज्म ट्रीटमेंट एप्रोप्रिएट है अगर पेशेंट्स में टीएसएच के लेवल टीएसएच लेस देन 0.1 मिली यूनिट्स पर लेटर, राइट. अच्छा, अब नाउ दिस इज द असाइनमेंट you have. You will give me the assignment. I will put the questions in your assignment, and I will end this lecture with a nice proverb that God help those who help themselves. Try to help yourself out, and we will also try to help you out. But if you will help yourself, God will also help you out. Now, I will end this lecture with a word of thanks to all and good luck to all. Thank you.